सभी लोग एसबीआई के जब से नोटिफिकेशन आया है फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर, एवरीबडी इज पजल्ड, एवरीबडी इज थिंकिंग, मैम देयर आर सो मेनी थिंग्स, इफ वी सी लेटर, if we see essay, now essay and letter have been changed. Letter is converted into emails and essays have been changed, and now they are asking about situational analysis, they are asking about reports making, they are asking faces, how will we handle all these changes and how will we perform good in descriptive? Well, as I have said in my previous video, that SBI will definitely guide us before the examination. And now the notification, it is the official notification from SBI, not even the notification, but it is now the fully fledged plan and also the samples which have been provided in pre-recruitment examination training for PO 24-25. And this is the descriptive paper model question set 1, and we have been provided with set 2 as well. Now what is there in these sets? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे सेट्स हैं, they are designed as per the notifications criteria for descriptive exam. We all know that's the 4 things we have been provided with in the notification. We need to work on them, right? तो उन्हीं 4 चीजों के बारे में हमारे एग्जाम के सैंपल्स क्या बनने चाहिए वो हमारे इन 2 सेट्स में हमें गिवन है. This is set number 1. Let's go through it once. अगर आप यहाँ पर सबसे पहले देखते हो तो लिखा है ईमेल राइटिंग के जनरल गाइडलाइंस, और जनरल गाइडलाइंस में हमसे बोल रहे हैं कि क्या-क्या चीजें हैं जो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है और क्या-क्या जो हमें ध्यान रखना है कि हमें नहीं करना है. नंबर 1, इन द ओपनिंग इट इज सेइंग कि हैव अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन. आप जिसको भी ईमेल लिख रहे हो अपनी सब्जेक्ट लाइन को क्लियर रखिए. और आपका जो मेन बॉडी है, मतलब जैसे लेटर का एक हमारा इंट्रोडक्शन होता है, एक मेन बॉडी होता है और उसके बाद हम एक पोलाइट क्लोजिंग करते हैं. सिमिलरली हम ईमेल्स भी ऐसे ही फॉर्म करते हैं. तो आपका जो कंटेंट है वो मेन बॉडी ऑफ द ईमेल में आना चाहिए. आपको प्रोफेशनल सैल्यूटेशन डियर सर मैम या डियर सर और डियर मैडम का यूज करना है. ये जो प्रॉपर सैल्यूटेशन है ये आपके ईमेल में होने चाहिए. आपको सरकाज़म या ह्यूमर नहीं दिखाना है. ऑब्वियसली यू आर गोइंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, योर टोन शुड बी प्रोफेशनल, फॉर्मल. तो आपको ध्यान रखना है कि आपका हर सेंटेंस बहुत ही relevant कंटेंट पर बना हुआ होना चाहिए. One liners are not the suggested formal way to send emails or replies to emails. कभी भी जब आप किसी को emails लिखते हैं तो उसके reply में one liner is not sufficient. You need to explain why you are writing this email. First of all, the reason, then what do you expect from them, and then your polite closing. Always a letter or an email must be designed in this way. Then your format of the email should be proper. आपको एक clear font का use करना है. आपको commonly preferred font ही use करने हैं और एक appropriate layout में आपकी email दिखनी चाहिए. We have sample as well. आपको grammar की कोई भी mistake commit नहीं करनी है. Your grammar, your punctuation, your spelling, these things should not be mistaken. और आपको एक वही आइडिया को कन्वे करना है which is ask, ना कि कोई भी नई चीज आप यहाँ पे. It is good to use an active voice than a passive voice. When you paraphrase a sentence, mostly we go with passive voice. But they are saying you need to make most of the sentences in active voice. Because आप किसी को respond कर रहे होंगे, आप किसी को अपनी query लिख रहे होंगे, maybe आप एक job letter लिख रहे हैं, maybe आप एक problem लिख रहे हैं. So make the sentence for your usage only, not for the others. So that's why they are saying you to prefer active voice, not passive voice. For example, we will be processing your request today. Na ki your request will be processed today. In the second one, this is a general statement. यहाँ पर ना करने वाले के बारे में कोई information नहीं है. But when you write to any solution, when you write a solution for anyone, you should take responsibility. उस responsibility को show करने के लिए हम वहाँ पर क्या लिखते हैं? खुद के बारे में लिखते हैं. एड्रेस फील्ड के बारे में अगर बात करते हैं, आपकी ईमेल आईडी करेक्टली मेंशन होनी चाहिए. फर्स्ट आईडी उस पर्सन की जिसको आप ये ईमेल क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो. सेकंड, आप सीसी में भी रख सकते हो उन लोगों को जिनको आप इस मेल के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ईमेल लिखना है, आप किसी कस्टमर को ईमेल का रिप्लाई कर रहे हो, बट अर्लियर व्हेन ही रोट द ईमेल टू यू,
उन्होंने आपके साथ-साथ ब्रांच के कोई और भी सीनियर सपोज़ थे या कोई और थे, सपोज़ एक कोई भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर थे, कोई भी ज़ोनल ऑफिसर थे, कोई भी हो सकता है, अगर उनको रखा था, देन यू मस्ट पुट दैट पर्सन इन योर सीसी। इसको हम लोग सीसी बोलते हैं, ठीक है? जिसको हम साथ में रखते हैं। आप बीसीसी में किसको रखते हैं? जो आपके और भी ज़्यादा एडिशनल लोग हो सकते हैं। तो इफ यू आर सेंडिंग द सेम ईमेल टू मल्टीपल पीपल और यूज़ द ईमेल मर्ज ऑप्शन, you will not inadvertently share emails. ध्यान रखें, people will not know that you have sent the same email to others or will appear personalized. Sometimes लोग क्या करते हैं, people forward a mail और वो उस मेल को फॉरवर्ड करने से क्या होता है, one can see okay this mail has already been sent to someone else. तो ऐसी गलती हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ये जितनी भी बातें यहाँ पर लिखी हैं, these are all important things for any email जो भी आप एक प्रोफेशनल वे में करते हैं, not only in bank but also in like everywhere you use all these important criteria. आपसे कह रहा है इट इज गुड टू इट इज अ गुड आइडिया टू इनपुट द एड्रेस फील्ड एट लास्ट आफ्टर चेकिंग द ईमेल thoroughly. This is to ensure the email is not inadvertently sent to the recipient halfway through or when incomplete. तो कह रहे हैं जब आप एक बार अपना बॉडी प्रिपेयर कर लो, आप सबसे बाद में इस चीज को फिल करो ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे यहाँ पे ना रह जाए। अगर बात करते हैं कुछ जनरल चीजों के बारे में, प्लीज मेंशन द अप्रोप्रिएट प्रायोरिटी कि ये मेल अर्जेंट बेसिस पर है, ये एक इम्पॉर्टेंट मेल है, ये एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल है, ये सब आप ज़रूर लिखें। प्रूफ रीड करें हर ईमेल को दैट यू सेंड जो भी आप भेज रहे हैं। आंसर ऑल क्वेश्चंस दैट द सेंडर हैज आस्क्ड फॉर इफ द ईमेल इज अ रिप्लाई ईमेल। जो भी हमारा ईमेल है, जो भी हमारा फॉर्मेट या स्ट्रक्चर शुरू होता है, उससे स्टार्ट करें, फिर अपना मेन कंटेंट बॉडी में लिखें एंड देन आप एक प्रॉपर क्लोजिंग इसको दें या फिर आप इसको एक कंक्लूजन दें। It is always best to start with the body or major content, then go to the subject line. What happens actually, जब हम कोई भी ईमेल लिखते हैं तो हम एक सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, why we are writing this email, उसका एक शॉर्ट वन लाइनर या हाफ लाइनर हम लिखते हैं एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग द बॉडी ऑफ द ईमेल। ये अब यहाँ पर ये एडवाइस आपको क्यों किया जा रहा है, once you write the body of the email you definitely have the idea now what you have written. आपको उसको पूरे को समराइज करें, एक आधी लाइन या एक लाइन का एक सेंटेंस फॉर्म करें एंड दैट यू राइट इन द सब्जेक्ट, इट विल बी वेरी इजी। मतलब ये जो बात यहाँ पर आपको बताई गई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी बातों का ध्यान रखें, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब किन-किन चीज़ों का आप लोगों को लाइक ध्यान रखना है जो आपको नहीं करनी है। कोई भी शॉर्टकट्स, एब्रिविएशन, कांट, डोंट, वांट इनका यूज़ ना करें। हमेशा क्लियर लिखें, ठीक है? डिटेल लिखें, क्लियर लिखें। आप कभी भी जो आपके लाइक जार्गन्स होते हैं, स्लैंग लैंग्वेजेस होती हैं, व्हाट्सएप, ये बारी, ये सब कुछ आपको यूज़ नहीं करने हैं। मे बी द कस्टमर्स आर नॉट फ़ैमिलियर और द jargons are the that particular way of talking or the sentences or the words that you use in your organization. Maybe the people are not aware of those words or those terms. Keep your email simple. Do not use capital letters except to start a sentence. This is absolutely rude and meant as a shout or loud word. Do not unnecessarily use exclamation marks. ये मतलब कोई ऐसी फ्री की चीज नहीं है, जहां मन किया वहां लगा दिया, वहीं लगाएं जहां पर जरूरी है। आप unnecessarily lengthy and complex sentences बिल्कुल भी ना लिखें। There are myths that if we use very difficult words, if we use very advanced kind of vocabulary, we are going to get more marks. Not at all. Your intent, your purpose of writing the email is just you want to convey your message. You want to resolve a query. You want to apply for a job application. You have to be simple. You have to write clear. Grammatical mistakes should not be there. Punctuation error should not be there. Spellings must be correct. But remember, it should be simple and that you can do very easily. Be careful while using cliches like please find attached document. As per our conversation, it is better to use small normal sentences to convey the meaning. Shortcuts like PFA, POC, or end of day, EOD, mat likhiye aap inko, theek hai? It is going to make your email complex. Avoid repetition using language which appears robotic, जैसे कि किसी मशीन से आ रहा हो। तो एआई से जो डेटा उठाते हैं, हम याद कर लेते हैं, जाके छाप के आ जाते हैं।
जो जो इसको चेक करेंगे ना, उनको क्लियरली पता है आप क्या लिख रहे हो और आप कहाँ से लिख रहे हो। इट केम फ्रॉम यू और इट केम फ्रॉम अ मशीन, एवरीबॉडी नोज़। अगर बात करें हम लोग अपने एग्जाम्पल के बारे में, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यू आर वर्किंग एज अ ब्रांच मैनेजर इन सहारनपुर branch of ABC Bank. One of your customers, Mr. Shinde, has sent a mail to the branch mail ID asking for transfer of his accounts from your branch to Cochin branch of your bank. You have done the task. Please do send a reply to him. You have done the task. Always read the question very carefully. You need to know what exactly is supposed to be done by your end. अगर आपको यही नहीं पता है आपने करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। बेसिकली यू हैव डन इट, आपको सिर्फ उन्हें इन्फॉर्म करना है। तो ईमेल ऑफ मिस्टर शिंदे, सीसी ब्रांच ईमेल ऑफ कोचिन ब्रांच। व्हाई? बिकॉज उन्होंने आपको ट्रांसफर करने को बोला है, तो ब्रांच की मेल आईडी पर आया था, आपको भी सेम करना है। डियर सर, सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, सिंपल है बिल्कुल, है ना। Dear sir, Namaste, greetings from ABC Bank. We acknowledge receipt of your email dated this requesting for transfer of your accounts to our Kochi branch. We are pleased to inform that the following accounts have been transferred to Cochin branch of this on this, मतलब जिस डेट पे आपने ये लिखा है। Next, saving account number this, fixed deposit account number this, and loan account number this. These are the details which have been provided by the customer earlier. Number two, we value your relationship with us. In case of any query or further information, please get in touch with Mr. Branch Manager of Kochi Branch. Cochin Branch email ID and contact number. We thank you for banking with us and assure you our best service. Can you find any very difficult word here? एक बहुत बड़ा सा कोई idiom यहाँ पर लिखा है, nothing. It's all simple. Simply समझ में आ रहा है, इस दिन ये दिया था, ये accounts थे, ये काम करना है, आप इनसे बात कर सकते हैं with name, branch manager, Saharanpur branch, city, pin code and contact details. So simple, so beautiful, right? नंबर 2, बात करते हैं किसके बारे में? रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट लिखना एक बहुत ही अमेजिंग काम है। बस क्या करना होता है? डेटा का अच्छे से एनालिसिस करना होता है। Most reports follow a clear structure. Number 1, the title clearly reflect the report's purpose or topic. Introduction provides background information, objectives and scope of the report. ये क्या एक्सप्लेन करेगा? ये एक्सप्लेन करेगा कि रिपोर्ट क्यों लिखी जा रही है और इस रिपोर्ट में क्या-क्या आएगा। अब आप तैयार करेंगे इसकी मेन बॉडी। इस मेन बॉडी को आप लॉजिकल सेक्शंस में डिवाइड करेंगे क्लियर हेडिंग्स के साथ में। हर सेक्शन में एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट उस टॉपिक का होना चाहिए। आप बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं अपनी क्लैरिटी को शो करने के लिए। Then you will be concluding your report. You will be summarizing the key points, key findings which you have found, interpretations and insights from the body of the report. जो ये main body आपने लिखा है, इसी से summarize करके हम अपने conclusion को लिखते हैं। Again, same thing, be clear and concise. बिल्कुल भी difficult jargons, difficult language का use मत कीजिए. Use simple and clear language. Always try to understand topic. आप topic को clearly समझिए and then start writing. Unnecessary details को बिल्कुल भी include मत कीजिए. जिस message को convey करना है, just be stick to that. Do not go off the road. आपको जो पूछा गया है, just be relevant to that. Use a professional tone. Obviously, you are writing in an examination, you have to maintain objectivity and formality. That's very important. Keep personal opinions and emotions out of the report unless it is specifically required. ये चीजें जरूरी नहीं है, तो इनको बिल्कुल भी आप मत लगाइए। सपोर्ट विद डेटा एंड एविडेंस। अगर आपके फाइंडिंग में कोई भी क्लेम आप कर रहे हैं, तो आप उनके साथ डेटा, फैक्ट्स या एविडेंस को जरूर लगाइए। एक लॉजिकल फ्लो को जरूर मेंटेन कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग कीजिए। हेडलाइंस हो गए, हेडिंग्स हो गए, सब हेडिंग्स हो गए, नंबर लगाने हो गए, बुलेट पॉइंट्स हो गए, फॉन्ट और स्पेसिंग हो गया। किसी भी रिपोर्ट में ये चीजें बहुत जरूरी होती है ताकि क्लैरिटी मिले किसको? रीडर को। कंक्लूजन को फोकस्ड रखिए। एग्जाम्पल देखिए, you are a manager of a bank and you conducted a customer connect camp for account opening of economically weaker section of public. Write a report to your head office on the camp. हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमें रिपोर्ट लिखनी है ऑन कस्टमर कनेक्ट कैंप फॉर अकाउंट ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। लुक एट दिस सब्जेक्ट। आप देख रहे हैं, छोटा है बट क्लियरली इंटेंडेड मीनिंग हमारे पास यहाँ पे है। डेट इज दिस,
टू हेड ऑफिस, क्लियरली मेंशन। क्वेश्चन को देखिए, किसको, मतलब किसकी ओर से, आप तो ब्रांच मैनेजर हैं, तो ब्रांच मैनेजर। सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्ट ऑन कस्टमर कनेक्ट कैंप फॉर अकाउंट ओपनिंग। डियर सर और मैडम, एज वी आर अनअवेयर, I am pleased to submit a report on the successful customer connect camp conducted at your branch। ध्यान रखें, जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट या कैंप होता है, हमेशा उसका जो फर्स्ट वर्ड का जो हमारा इनिशियल होता है, दैट शुड बी इन कैपिटल। Conducted at our branch aimed at facilitating account opening for economically weaker sections of the community. The camp was held on February 5th, 2025, and focused on offering easy access to banking services to individuals from unreserved backgrounds. The event was strategically organized to cater to people who may not have access to traditional banking facilities or find the account opening process cumbersome. The camp was held at a local community hall and was attended by approximately 150 individuals. जब आप उस कैंप को कर रहे थे, तो ये सब डिटेल्स आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी डिटेल्स, कोई भी फाइंडिंग्स कभी भी बताते हैं, तो हमेशा इन चीज़ों के बारे में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास डेटा एंड नॉलेज होनी चाहिए। अ टीम, इसके बाद कुछ और डिटेल्स हैं जो आपने वहाँ पे किया। अ टीम वाज ऑन हैंड टू गाइड अटेंडीज, आपकी टीम ने गाइड किया, इंश्योर किया सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पे आए, क्लियर और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। जो किया वो उन सबको समझ में आ गया। स्पेशल अटेंशन वाज गिवन टू द एल्डरली, वुमेन और फर्स्ट टाइम अकाउंट होल्डर्स। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना और भी वेरियस जो सब्सिडी प्रोग्राम्स हैं, उनमें भी आपने उनको एनरोल किया। कैंप के अंत में आपने सक्सेसफुली 120 नए अकाउंट खोले और आपने अवेयरनेस को रेज किया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। We look forward to continue such initiatives to further promote financial inclusion. Best regards। ये बहुत ही सिंपल है। This is just what you did. What you did. Handwriting is not good on this PDF, so sorry for that. It is just what you did. This is what you just need to write here. और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नया नहीं, राइट? अब अगर बात करते हैं अपने प्रेसी राइटिंग के बारे में। प्रेसी राइटिंग क्या होता है? Praise writing is basically, this is the test of your language proficiency and comprehension skills, because you are given a paragraph or a passage. You just need to read that paragraph and you need to show your creativity by briefing it. You need to summarize it in less words, और वो जो कम वर्ड्स हैं उसमें दिखाई देता है कि आपने क्या अपने स्किल्स को यूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू रीड दैट पैराग्राफ, please read it carefully, make mental notes or outline. Second, write a précis using simple and précis language। आप जो भी précis लिखते हैं वो बहुत ही precise language के साथ होना चाहिए, मतलब उसमें सारे important points हों और कोई भी information मिस ना हो। प्रूफ रीड कीजिए, एडिट कर लीजिए अगर आपको गलत लग रहा है तो। डू नॉट यूज फ्लावरी एंड सुपरफ्लुअस वर्ड्स, नॉट एट ऑल नीडेड। Make sure your sentences are well structured and easy to read. Stick to the point. Do not include unnecessary details. कहीं पर भी नहीं करना है। Use active rather than passive voice when possible. Remember, this is the point which is said again and again. Please be careful of this. आपका जो प्रेसी है वो आपके पैसेज का 1/3 होना चाहिए। For example, if there are 150 words in the paragraph, you need to complete it in 50 words. This is what you need to keep in mind. There we have a paragraph. इस पैराग्राफ को आप देखेंगे तो देखो काफी बड़ा है। यहाँ पे बैंकिंग लैंडस्केप के बारे में ये है, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया गया है और बहुत कुछ यहाँ पर लिखा है जिसको चेंज किया गया है एक छोटे से पैराग्राफ, राइट? तो जब हम अपना प्रेसी लिखते हैं, ये देखो कितने, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पर हमारे पैराग्राफ से, लेकिन इसको जब चेंज किया गया तो एक छोटे से पैराग्राफ में इसको बना दिया गया है। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल लेट यू नो कि हम इन्हें कैसे करते हैं। तो इसके बारे में कोई भी चिंता आपको रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हमसे तो ये होगा ही नहीं, आप ये इतना बड़ा पैसेज है, इसको कैसे किया जाता है? तो कोई भी घबराने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। इट्स ईज़ी टू डू, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आसान है इसको करना। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान यही रखना है कि जब आप इसे करोगे, तो इसे करते वक़्त हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को मिस नहीं करना होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ,
तो चाहे वो प्रेसी हो, चाहे वो ईमेल राइटिंग हो या चाहे वो कुछ और हो, इन सभी चीज़ों में आपकी जो ग्रामर है, आपकी जो लेक्सिकल रिसोर्स है, आपकी जो एबिलिटी है सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करने की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशन, इन जैसे टॉपिक्स का, वर्ब्स, ऐसे टॉपिक्स का हमेशा ख्याल रखें और इनको अपनी फिंगर टिप्स पर रखें क्योंकि ये बहुत नेसेसरी होते हैं, राइट? इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट इज़ हमारा किसी भी अगर क्या कहते हैं हम, एक अगर आपको एक एक सिचुएशन दी गई है और उस सिचुएशन को आपको एनालाइज़ करना है और एनालाइज़ करने के बाद आपको एक रिपोर्ट बनानी है। आपको एक सिचुएशनल एनालिसिस करना है, तो उसे कैसे करते हैं? एनालाइज़ द फॉलोइंग सिनेरियो फोकसिंग ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलो। A long-standing customer expresses dissatisfaction with the bank service and threatens to close their account. How will you manage the situation? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? हमें इस सिचुएशन को एनालाइज करना है। तो हमें मैनेज करना है डिससैटिस्फाइड लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर को। In this situation, the customer's dissatisfaction indicates a gap in meeting their expectation, which could involve poor service quality, a recent negative experience, or unresolved issues. The threat of closing the account could result in significant loss for the bank, not only financially, but also in terms of customer loyalty and reputation. Obviously, clear सी बात है. सबसे पहले, I would listen actively to the customer's concerns, showing empathy and allowing them to fully explain the issue. है ना? अगर आप किसी कोई आपसे बोले मैं तो अपना यहाँ पे अकाउंट बंद करा दूँगा, I'll not be I'll like no longer use the services of your bank. Obviously, that's a threat, and you need to make that person calm down first, right? So first you'll ask the person like what you can do for him. आप उनसे पूछेंगे कि रूट कॉजेस इस डिससैटिस्फैक्शन के कैसे हैं। Just one issue cannot create this much negativity. There must be something else which has been bothering him for a long time. You need to get to that cause, such as recent service problems or unmet expectations. After understanding the problem, I would offer a personalized solution, such as resolving the issue immediately, offering compensation, or providing a tailored service that aligns with their needs. I would ensure open communication, setting clear expectations for follow up and resolution. Finally, I'd review my internal process to prevent future occurrences, ensuring long term satisfaction. Look, this is how simple it is. है ना कितना आसान? Is it difficult? Did you find it very complicated? Now I can understand what your problems can be. Number one, many of you say कि मैम हमें sentences बनाने नहीं आते. We feel blank when we suddenly see a prompt or we see something, we just feel like, oh, what is this? I just cannot do this. This is so, I cannot manage the thoughts. Nothing is coming to my mind. When I start writing, I just write anything. तो अगर ऐसा आपके साथ है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज, दैट you understand this language. You can convey what you want to. You can understand what other is saying, what others are saying, right? If you have these abilities, you can understand the language, you can respond. You just need to understand one logical point. Do what is simple. Don't try to make things very complicated. Don't try to think, of difficult words, difficult phrases, very stylish kind of writing. You don't need to do that. You are just supposed to write in a clear way. You need to tell what you want to say. Just write that. तो सिंपल चीजों की प्रैक्टिस करिए. कंजंक्शंस बहुत जरूरी हैं. You see, there's a word finally, there's word furthermore, there's word additionally. These are the conjunctions that help you to connect the sentence in proper flow. If you use them, your writing will look better, right? To make things easy, to make things better, I can help you. और ये जो आपकी हेल्प है ये होगी एक छोटे से बैच के साथ. ठीक है, अब ये जो बैच है ये आप लोगों के लिए आ रहा है बहुत ही जल्दी. ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का वीडियो कोर्स है
और ये एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम के लिए है। इसमें 20 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होंगी। आपको मैं बताऊँगी कि लैंग्वेज को बेसिकली वर्ड्स में उतारते कैसे हैं, व्हाट शुड बी द राइट ग्रामर एंड वोकैब्युलरी। यू डोंट नीड वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स बट एप्रोप्रिएट वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप राइट वर्ड्स को राइट जगह पे यूज़ नहीं करते हो, तो आप गलती कर रहे हो, है ना? तो हम जब कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो डिफरेंट होता है ना? और हर उस डिफरेंट वर्ड का हमें पता होना चाहिए कि हम जो यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें ये नहीं पता कि कौन-सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा, तो फिर हम गलती कर रहे हैं, है ना? तो ये जो बैच है आप लोग देख रहे हो, दिस बैच इज़ जस्ट इन ₹399 और अगर आप इस पे DESC का कोड लगाते हो, तो देयर विल बी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट फॉर यू। ये जो क्लासेस होंगी ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे होंगी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली। सेकंड, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत कुछ है। देयर इज़ अ प्रैक्टिस सेट, आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें 15 सेट्स हैं हर टॉपिक से कम 15 सेट हैं और आप आराम से अपना जो सेट है उसे सबमिट कर सकते हैं। यू कैन गेट योर डिटेल्ड स्कोर बेस्ड ऑन वर्ड काउंट, स्पेलिंग करेक्शन एंड ग्रामर करेक्शन। आपको एक्सपर्ट गाइडलाइन, एक्सपर्ट सजेशन भी मिल जाएँगे और आपको सैंपल्स भी मिल जाएँगे पीडीएफ फॉर्मेट में। 199 का ये कोर्स है, इस पे भी आपका 10% का डिस्काउंट है इफ यू यूज़ द कोड सिलेक्शन। इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में दीज़ 1 बैच एंड 1 प्रैक्टिस दैट इज़ फॉर यू। तो अगर आप जुड़ते हैं क्लास में तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं और आप मेरे इनपुट्स मेरे आउटपुट्स जो भी चीज़ मैं आपको सिखाऊँगी, जो भी सजेशंस होंगे वो भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपनी तैयारी करिए, खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।